اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ برادران و خواہران ایمانی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سخاوت حسین سنرالوی فقہ سیشن کے ساتھ المہدی ٹی وی سے حاضر خدمت ہے۔ یہ سیشن روزانہ 9 بجے شروع ہو جایا کرے گا۔ ہر روز اس میں ایک ٹاپک رکھیں گے، اس ٹاپک پر آپ سوال کریں گے اور میں آپ کے سوالات کے جواب دوں گا۔ آج کا جو ٹاپک رکھا گیا ہے وہ ہے تقلید۔ تقلید یعنی فالوئنگ۔ قلدہ یقلدو کا مصدر ہے تقلید۔ جو تقلید کرتا ہے وہ ہوتا ہے مقلد، جس کی تقلید کی جاتی ہے وہ ہوتا ہے مقلد۔ زمانہ معصوم میں یعنی نبی اور امام کے ادوار میں تقلید نہیں ہوتی، اور جب امام زمانہ علیہ السلام تشریف لے آئیں گے تو پھر تقلید بند ہو جائے گی، کیونکہ تقلید غیبت معصوم میں ہوتی ہے، حضور معصوم میں نہیں ہوتی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو احکام شریعت ہیں، اگر ہمارے پاس نص موجود ہو، نص سے مراد قرآن کی آیت یا حکم معصوم، ہمارے سامنے اگر معصوم تشریف فرما ہیں اور انہوں نے ایک چیز کو حرام کیا ہے تو اس میں ہمیں کوئی اور اجتہاد، استنباط، آرگومنٹ کرنے کی اجازت نہیں، بلکہ یہی کافی ہے۔ لہذا ہمیں تقلید کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے جب معصوم تک ہماری اپروچ نہ ہو، کیونکہ 260 ہجری میں حضرت امام زمانہ علیہ السلام پردہ غیبت میں چلے گئے۔ اب اس کے بعد اما الحوادث الواقعۃ فرجعوا فیہا الی روات حدیثنا، یہ حکم آ گیا، توقیع مبارک آ گئی، خط آ گیا امام کا کہ ڈے ٹو ڈے نئے مسائل جو پیدا ہوں ان میں ہمارے حدیثوں کے راویوں، ہماری حدیثوں کے راویوں کی طرف رجوع کریں۔ فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ، وہ میری طرف سے تم پر حجت ہے اور میں اللہ کی طرف سے ان پر حجت ہوں۔ یہ توقیع مبارک ہمیں بتاتی ہے، توقیع اس خط کو کہتے ہیں جو امام زمانہ علیہ السلام لکھتے ہیں۔ امام زمانہ علیہ السلام زمانہ غیبت کبریٰ میں خطوط لکھتے تھے اپنے نائبین کو، اور یہ سلسلہ غیبت کبریٰ کے بعد بھی جاری رہا، یعنی شیخ مفید کو لکھے گئے خطوط خود غیبت کبریٰ کے خطوط ہیں۔ تقریباً اگر ان کی سب کی تعداد ملائی جائے تو اراؤنڈ 80 لیٹرز ہیں، 80 خطوط ہیں، جن خطوط کو موسوعۃ الامام المہدی میں باقاعدہ درج کیا گیا۔ بہار میں بھی بعض خطوط موجود ہیں۔ تو کیونکہ امام زمانہ علیہ السلام ہمیں یہ کہہ گئے کہ جب نت نئے مسائل درپیش ہوں تو راویان حدیث کی طرف یعنی رجال دین، جو ہمارے اقوال، ہمارے فرامین کو کوٹ کرتے ہیں،
इसीलिए हमारे यहाँ हौज़ा इल्मिया में इजाज़त रिवायत दिया जाता है। मौलानास को, हुज्जतुल इस्लाम को, सिक़ातुद्दीन को, बल्कि आयतुल्लाह हजरात को भी बड़ी जो अथॉरिटीज़ होती है, आजकल जो इजाज़त ज़्यादा चल रहा है वो आगा बुजुर्ग तेहरानी का चल रहा है, आगा बुजुर्ग का, उनसे जो इजाज़ा आगे चलता आ रहा है हम तक वही इजाज़ा आ रहा है। हमारे जो आगे शागिर्द होंगे उन तक भी वही इजाज़ा आएगा। ये इजाज़ा रिवायत इसलिए दिया जाता है कि रावियान हदीस दरअसल बयान करते हैं दीन मोहम्मद व आले मोहम्मद, शरीयत मोहम्मद और अहकाम फ़िक़्ह अहले बैत, फ़िक़्ह इमाम जाफ़र सादिक़ सलामुल्लाह अलैह। तो क्योंकि ज़माने गैबत में हमें चाहिए कि किसी की तक़लीद करें, तो तीन हाल से बात खाली नहीं। या तो बंदा खुद मुज्तहिद बन जाए तो उसको किसी तक़लीद की ज़रूरत नहीं, या मुख्तात हो जाए यानी चंद मराजे के फतवों को इकट्ठा करके अपनी तकलीफ़ शरई मुअय्यन कर ले तो भी ज़रूरत नहीं, या फिर वो तक़लीद करे। मुख्तात के लिए तकरीबन करीब इज्तिहाद का स्टेटस चाहिए। मुज्तहिद वो होता है कि जिस पर यहरुम अलैहि तक़लीद, उस पर तक़लीद हराम हो जाती है। तो ज़माने गैबत कुबरा में हम सब पर यह ज़रूरी है या मुज्तहिद बन जाएं, या मुख्तात बन जाएं, या मुक़ल्लिद बन जाएं। अब कौन होगा जिसकी तक़लीद की जाएगी? अम्मा मन कान मिनल फ़ुक़हाए साइनन लिनफ़्सिह हाफ़िज़न लिदीनिह मुखालिफ़न लिहवाहु मुतीअन लिअम्र मौलाहु। चार क्वालिटीज़ होनी चाहिए उस मुज्तहिद में। नफ्स का गुलाम ना हो, नफ्स पर कंट्रोल रखता हो, तहज़ीबुन नफ्स रखता हो, तज़कियतुन नफ्स रखता हो, अपने दीन का मुहाफिज हो, झुकने बिकने वाला ना हो, जासूस ना बन जाए, कोई एजेंसी कोई मुल्क उसे खरीद कर उसके फतवे चेंज न करा ले, वक्त का काजी शुरै न, अपने हवाए नफ्स का मुखालिफ हो, यानी जो उसे नफ्स अम्मारा कहे उस पर न चले, मुतीअन लिअम्र मौला हो, अपने मौला यानी इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के अम्र का मुती हो। फलिल अवाम अन युक़ल्लिदूह, पहला इरशाद गिरामी इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ का है। दूसरा इरशाद गिरामी इमाम हसन अस्करी सलामुल्लाह अलैह का है। ये दो इरशादात आज आपकी खिदमत आलिया में पेश कर दी है ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये तक़लीद मौलवियों का बनाया हुआ झंझट नहीं है, खुदा न खास्ता। बाद लोग ये समझते हैं कि मौलवियों ने मिल के इसे बना लिया है ताकि वो पैसा इकट्ठा करे। ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं, ये इल्ज़ाम है, तोहमत है, बोहतान है। मौला ये दे गए हैं इंस्टीट्यूट, मौलवी नहीं। अलबत्ता उस मौला के दिए हुए स्टेटस पर अगर मौलवी साहिबान ही फिट आ रहे हैं तो इसमें मौलवियों का तो कोई कसूर नहीं। गोया इस वक्त या बंदा मुज्तहिद हो, या मुख्तात हो, या मुक़ल्लिद हो। एक मुज्तहिद की तक़लीद करनी है, एक से ज़्यादा मुज्तहिदीन की तक़लीद नहीं कर सकते। ये नहीं हो सकता कि एक फतवा किसी का सख्त आ गया तो हमने कहा हम इनको छोड़ देते हैं, नरम फतवे वाले की तरफ चले जाते हैं। जो एहतियात वाजिब होती है उसमें रुजू हो सकता है दूसरे मुज्तहिद की तरफ, क्योंकि वो फतवा नहीं होता, फतवे में रुजू नहीं होगा। चंद इस्तिलाहात हम आपकी खिदमत आलिया में आज पेश करते हैं, उसके बाद आपसे गुजारिश करेंगे कि आप सवालों जवाब की महफिल में आ जाएं। नंबर एक, मरजा या मरजा। मरजा
उसे कहते हैं जिधर लोग रुजू करें। मर्जिया भी पढ़ा गया है, मरजा भी, जिसकी तरफ लोग रुजू करें। मुज्तहिद आज़म को मरजा इसलिए कहा जाता है, मरजाए आली कद्र, मरजाए शियायान जहान, मरजा उत्तशय्यो, कि वो जाए रुजू होता है, लोग अपने शरई मसाइल में उसकी तरफ रुजू करते हैं। मुज्तहिद इज्तिहाद कोशिश को कहते हैं, जहद से इज्तिहाद है, मुताबिअत के साथ कोशिश करना, कोशिश करके बंदा मुज्तहिद बनता है। मुज्तहिद दरअसल वो होता है लुगतन मुज्तहिद कोशिश करने वाला। इस्तिलाहन जो आकाम शरीयत को कुरान और सुन्नत, अक्ल और इजमाए मुहस्सल के जरिए समझ सके और इस्तिंबात कर सके। फिक्र लुगत में फाहम को कहते हैं, शरीयत में इस्तिलाह में अहकाम के मजमूए को कहते हैं, जो अहकाम खमसा के बारे में बताए। अहकाम 5 है, वाजिब, हराम, मंदूब, मकरूह और मुबाह। हमें ये देखना है कि हम डेस्टिनेशन तक, साल्वेशन हमारी कैसे हो, निजात कैसे हो, हम पर जो अमर मौला है उस हुक्म को सही कैसे बजा लाएं। अगर तो हम खुद इस काबिल होते तो हमें ज़रूरत ही नहीं थी कि किसी की तकलीद करते। हम इस काबिल नहीं हैं तो तकलीद करेंगे। ये भी अज़ान आलिया में महफूज फरमा लें कि मसलन फतवा, मुफ्ती जो फतवा दे, इफ्ता फतवा देना, फतवा वो डॉक्ट्राइन, वो कमांडमेंट जो दी जाती है। एक होता है फतवा, वो मुज्तहिद अपने मुक़ल्लिद को देगा। एक होता है हुक्म, वो वली फ़क़ीह या हाकिम शरीयत अपनी रइयत को देगा। ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। जो हुक्म होता है हाकिम शरीयत का, जब मुज्तहिद फ़क़ीह वली हो, वो मुज्तहिद आज़म के लिए भी मानना ज़रूरी होता है। दूसरे जो मुज्तहिद आज़म होंगे हुक्म को मानेंगे, फतवा को नहीं। फतवा अपने अपने मुज्तहिद के लिए होगा। ये भी अज़हान आलिया में महफूज फरमा लें कि विलायत फ़क़ीह इस्तिमरार हदफ अंबियाओ अइम्मा है। जो हदफ लेकर नबी व इमाम चले वो मासूम है, ये गैर मासूम भी उन्हीं को फॉलो करता है, इसलिए इसको वली फ़क़ीह कहा जाता है। फतवा, मुफ्ती, इफ्ता, मुज्तहिद, मुक़ल्लिद, मुक़ल्लद, मरजा, एहतियात वाजिब, एहतियात मुस्तहब। जहाँ मुज्तहिद कहता है कि वाजिब एहतियात ये है, बेहतर ये है कि आप इसको यूं करें, उसको कहते हैं एहतियात वाजिब। हकीकत शरइया, हकीकत मुतशर्रिआ। हकीकत शरइया ये होती है कि एक लफ्ज़ इस्तेमाल हो शारे मुक़द्दस के दौर में, उस माने में, मुतशर्रिआ बाद में वो ट्रांसफ़र हो, मुंतकिल हो। हम जब फ़िक़्ह का दर्स कहते हैं या फ़िक़ही सेशन को कंडक्ट करते हैं या फ़िक़्ह की क्लास लेते हैं, तो उसमें हमें ये बताना होता है कि फ़िक़्ह में हिल्लत व हुर्मत पे बहस होगी। वाजिब, हराम, मंदूब यानी मुस्तहब, मसनून, सुन्नत, मकरूह और इबाहा, मुबाह पे गुफ्तगू होगी। क्योंकि 5 ही आकाम है, या कोई शय किसी पर वाजिब होगी, या कोई अम्र वाजिब होगा, या हराम होगा, या सुन्नत होगा, या मकरूह होगा, या मुबाह होगा। वॉक करना आपके लिए मुबाह है, शराब का पीना हराम है, नमाज का पढ़ना वाजिब है, आजकल 20 रकातों का पढ़ना सुन्नत है, फूंक फूंक के दूध को पीना मकरूह है, बहुत गर्म शय का इस्तेमाल करना मकरूह है, सरनंगे नमाज का पढ़ना मकरूह है मसलन। तो ये जो फ़िक़ही सेशन है ये हमें ये बताएगा कि अहकाम, नमाज के अहकाम, रोज़े के अहकाम, हज के अहकाम, ज़कात के अहकाम, खुम्स के, अमर के, नही के, जिहाद के, जिहाद बिन नफ्स के, तवल्ला व तबर्रा के अहकाम क्या है, एहतराम वालिदैन के अहकाम, क़ज़ा क्या होती है, रहन क्या है, कर्ज क्या है, दैन कर्ज क्या है, कर्ज खा कौन होता है,
कर्ज देने वाला कब तक सब्र करे, लेने वाला कैसे दे, इजारा क्या होता है, विरासत क्या होती है, तलाक क्या है, निकाह क्या है, ये सारे अहकाम फ़िक़ही सेशन में आएंगे। हमारे यहाँ हिंदुस्तान पाकिस्तान के हमारे जो भाई बहन हैं, अनफॉर्चुनेटली उन्होंने कुछ अपनी फ़िक़्हें बना रखी हैं। जैसे अमेरिका की एक अपनी फ़िक़्ह है, अमेरिका के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं वो हलाल हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं वो हराम हैं। तो फ़िक़्ह इस्लाम की, फ़िक़्ह जाफ़र सादिक की, शरीयत मोहम्मद की, दीन इब्राहीम का। तो ये जो सेशन हम शुरू कर रहे हैं इंशाअल्लाह रमज़ान अल मुबारक में, हम इसमें हर किस्म की कॉल लेंगे, कुछ भी आप पूछ सकते हैं, मगर फोकस होगा फ़िक़्ह के ऊपर, क्योंकि फ़िक़्ह के दुरूस हमारे यहाँ कम कहे गए हैं। हम चाहते हैं ज़्यादा फ़क़ीह उसको कहते हैं, ये भी एक इस्तिलाह समझ लीजिए, जो फ़िक़्ह को जानता हो, जो उमूमन फ़िक़्ह को जानता हो, हमेशा फ़िक़्ह के साथ रहे, उसको कहते हैं फ़क़ीह। फ़क़ाहत भी समझने को कहते हैं, फ़िक़्ह अंडरस्टैंडिंग को कहते हैं, सेट ऑफ रूल्स को कहते हैं। फ़िक़्ह जाफ़रिया कोई नई फ़िक़्ह नहीं, कोई नई जूरिस्प्रूडेंस नहीं है, ये शरीयत मोहम्मद की सोफिस्टिकेटेड शेप का नाम है। शरीयतें कुल 5 हैं, शरीयत नूह, शरीयत इब्राहीम, शरीयत मूसा, शरीयत ईसा, शरीयत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सलामुल्लाह अला साइरिल अंबिया अजमाइन। तो ये एक बात भी जहन में रख लें कि कुछ अहकाम मनसूख होते हैं। जैसे बहुत सारे अहकाम थे, 2 बहनें एक शख्स की बीवी साबिक़ा ज़माने में हो सकती थी, तभी तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की जो अज़वाज थी वो दोनों बहनें थी आपस में, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की भी बकौल एक रिवायत के दोनों शुएब की दोनों बेटियों से शादी हुई थी। अगर वो रिवायत दुरुस्त हो, वो उस वक्त जायज़ थी, आज जायज़ नहीं है। बहुत सारे अहकाम हैं जो शरीयत मुस्तफ़ा ने आकर मनसूख कर दिए, वो आज एप्लीकेबल नहीं है, वो उस ज़माने में थे। बाज़ चीज़ें हर शरीयत में हराम रहती हैं, जैसे कत्ल, हत्क इज़्ज़त, बुनियादी ज़रूरतों का रोकना वगैरह, ये हर दौर में मसलन हराम रहा है। तो शरीयत सुमजालना का अला शरीयत मिनल अम्र फत्तबिहा वला तत्तबि अहवा अल्लज़ीना ला यअलमून, ये है शरीयत। शरीयत का लुग़वी माना रास्ता है, शरीयत यानी रास्ता। दीन भी रास्ते को कहते हैं। शरअ लकुम मिनद दीन, ये शरीयत है, दीन भी शरीयत है। तो आज के इस मुख्तसर सिलसिला गुफ्तगू में खुलासा ये हुआ, हम सब ने दीन इब्राहीमी पे अमल करना है, हम सब ने शरीयत मुस्तफ़वी पे अमल करना है, हम सब ने फ़िक़्ह जाफ़रिया पर अमल करना है। हमने अपनी ओपिनियन शामिल नहीं करनी, वरना वो तशरीअ हो जाएगी, यानी हम खुद शरअ को, शरीयत को जाल करेंगे, ये हराम है। तशरीअ हरामुन, ये भी एक इस्तिलाह आ गई आपके पास। अब देखिए, दीन, शरीयत, फ़िक़्ह, फ़क़ाहत, शारे मुक़द्दस, मुतशर्रिअ, जो नेक बंदा हो, दीनदार, उसको कहते हैं मुतशर्रिअ। हकीकत शरइया, हकीकत मुतशर्रिआ, फ़क़ीह, मुज्तहिद, मरजा, मुक़ल्लिद, मुक़ल्लद, फतवा, इफ्ता, मुफ्ती, एहतियात वाजिब, एहतियात मुस्तहब, ये कुछ चीज़ें आ गई जो आपकी खिदमत आलिया में जल्दी जल्दी पेश कर दी। 5 मिनट के अंदर आप अपने सवालात तैयार कर लें प्लीज़, आपके सवालात के हम जवाब देंगे। 5 मिनट और मैं गुफ्तगू करूँगा, फिर आप बेशक सवाल कर सकते हैं। ये सेशन ऐसे ही रहेगा, मुख्तसर गुफ्तगू होगी और ज़्यादा सवालों के जवाब दिए जाएंगे। बल्कि अगर आप चाहें अभी तो सवाल शुरू कर सकते हैं, बीच में गुफ्तगू भी जारी रहेगी। नंबर टाइप कर दें कंट्रोल रूम वाले, 8562665786। अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो आप कॉल कर लीजिए, हम आपकी कॉल्स के जवाब देंगे। आज हमारा उन्वान अगरचे तकलीद है, मगर आप कोई भी सवाल कर सकते हैं। रोज़े के वाजिबात भी पूछ सकते हैं, रोज़े के मुहर्रमात भी पूछ सकते हैं, रोज़े के मकरूहात भी पूछ सकते हैं, रोज़े की रूहानियात भी पूछ सकते हैं कि स्पिरिचुअल रोज़ा मसलन क्या होता है, नमाज के वाजिबात, नमाज के मुहर्रमात,
नमाज के मकरूहात, ज़कात के आकाम, हज के आकाम, खुम्स के आकाम, कुछ भी आप पूछ सकते हैं। ये सेशन तकरीबन ओपन सेशन है। आप हजरात ख़वातीन अगर वॉच कर रहे हैं तो 9:22 हो गए हैं। आपके लिए बेशक अब लाइन खुली है 856-266-5786 पे आप कॉल कर लें। जब तक आपकी कॉल्स नहीं आती मैं कुछ गुजारिशात और करूँगा। ये आज जो हमारा फ़िक़्ह सेशन नंबर 1 है, इसके अंदर देखिए जैसे जैसे हम ज़माने इमाम से दूर होते गए तो हमें तक़लीद की ज़्यादा ज़रूरत दरपेश होती गई। जैसे जैसे हम करीब थे, यानी आप देखें इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की ग़ैबत सुग़रा के बाद काफ़ी अरसे तक हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वैसे तो ये आपको इल्म है कि शेख सद्दूक रहमतुल्लाह अलैह इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की दुआ से पैदा हुए और वो इमाम ज़माना के हम आसर रहे। मगर उस ज़माने में उनके दौर में इतना ज़्यादा फतवे का रवाज न था, क्योंकि इमीडिएट अभी अभी मासूम गए थे और मासूम का वो जो सिलसिला था इंफॉर्मेशन का, वो अभी फ्रेश लोगों के जहनों में मौजूद था। पहले कॉलर देखते हैं कौन है और क्या कहते हैं, फिर इस कॉल्स का सिलसिला जारी रहेगा। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहला रोजा मुबारक हो। रमजान करीम हो जनाब। बात कर रहा हूँ कनाडा से, मैं सस्तीन ज़मान शहर बात कर रहा हूँ। जी बिस्मिल्लाह। अभी आपका मैं सुन रहा था कि वो कुरान भी माशाल्लाह सुना मैंने आपका, और ये प्रोग्राम भी सुन रहा। इसमें एक आपने बात जो बताई हुई है कि खुले सर जो है वो पढ़ना, क्या नाम है, नमाज पढ़ना जो है मकरू है। तो फिर हम लोग क्यों नहीं सर पे टोपी रखते? जब हम सर पे टोपी रखनी चाहिए। मैं पहले भी बता चुका हूँ, पिछले साल भी मैंने हाजी मोहम्मद रज़ाक गुजर साहब का स्पॉन्सर जो दर्स था, जैसे आज भी है, यकम रमज़ान को अर्ज़ किया था कि टोपी मौला अली अलैहिस्सलाम सफ़ेद रंग की पहनते थे, बाकी हमारे अम्मा तो अमामा पहनते थे। नमाज में नहीं, वैसे हम अगर नमाज में अमामा नहीं पहन सकते तो हमें टोपी पहननी चाहिए। जैसा कि खुद आज मैंने जो हसन काज़मी साहब एक बुजुर्ग थे, उनको मैंने गुस्ल दिया और उनको मैंने कफन पहनाया, तो उनके बच्चे भी मौजूद थे, उनके दामाद भी। तो मैंने बाकायदा ताहतुल हनक, जो इमामे का ताहतुल हनक है बाकायदा, वो मैंने लपेट दिया। ये सुन्नत है, आम मोमिनीन के लिए भी सुन्नत है कि वो ताहतुल हनक के साथ नमाज पढ़ें, नहीं तो कम से कम टोपी रखें। ये बिल्कुल दुरुस्त है, आपने सही कहा, इस पर तवज्जो होनी चाहिए। तस्लीम शहर साहब ने टोरंटो से कॉल की, अल्लाह आपको सलामत रखे। बाकी हजरात भी कॉल फरमा सकते हैं 856-266-5786। 9 से 10 तक ये हमारा सेशन हुआ करेगा। 20 से 30 मिनट हम गुफ्तगू करेंगे। आज ऑलमोस्ट 22 मिनट की है, फिर बेशक आप आ जाए, उस दौरान में भी हम उस टॉपिक पे शेर हासिल गुफ्तगू इंशाल्लाह करते रहेंगे। 856-266-5786 पे फ़िक़्ही सेशन में, फ़िक़्ह सेशन में आप कॉल कर सकते हैं। एक और कॉलर है हमारे साथ, देखते हैं कौन है। सलामुन अलैकुम। I have a question about the intentions for the fasting of Ramadan. Can we do the intention for the whole month? Yes, we can do the intention, Ali. Thank you very much for calling. Ali is calling from New York. If you do intent first night, like last night, today in the Sahar time, which has passed, or tomorrow, I will keep all fast of month of Ramadan, that is okay. Or you may do intent individually on daily basis, that is also okay. Thank you very much for calling us. Thank you. You're welcome. MashaAllah, I encourage youth, please come. This session is very good session. You are not fasting this time. You may drink tea, you may drink juice, you may drink water. You may use the fruits and nuts. And I will also request some of the volunteers who are here to provide me some water here. Please bring some cold water for me. Thank you. This is very open session. You may, you do not play this during the day, otherwise people will assume that I am not fasting. तो आप हजरात ख़वातीन ये प्रोग्राम देख रहे हैं,
یہ ہے فقہ سیشن نمبر 1، کل ہوگا فقہ سیشن نمبر 2۔ آج ہم تقلید کے عنوان پر زیادہ بحث کر رہے ہیں، تقلید کے عنوان پر کوئی بھی سوال آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تقلید کے بغیر، یہ نوٹ کر لیجئے، تقلید کے بغیر آپ کے جو اعمال ہیں وہ باطل ہیں۔ یہ کوئی کرٹسی نہیں، یہ کوئی مارکیٹنگ نہیں، یہ کوئی بازار نہیں، یہ شریعت مصطفیٰ ہے۔ قیامت کے دن میرے بھائی بہنوں یہ نہ کہنا کہ ہمیں کسی نے نہیں بتایا تھا۔ اگر آپ مقلد نہیں ہیں تو آپ کے اعمال باطل ہیں، پیریڈ۔ بڑی مہربانی، تقلید نہیں کر رہے تو تقلید کر لیجئے۔ تیسرے کالر ہیں ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بسم اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان مبارک، ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام جا رہا ہے۔ رمضان کریم انشاءاللہ۔ شکریہ، آپ کو صحت تندرستی الہی امین، اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے، صحت دے۔ شکریہ۔ ایک مسئلہ میرا آج یہ ہے قبلہ کہ آپ سے میت کو غسل دینے کے لیے پرامس کیا تھا لاسٹ نائٹ کو، لیکن سم ریزن کہ میں اپنے پرابلم یا گھر میں بجلی آؤٹ ہونے کی وجہ سے نہیں آ سکا۔ اس کا کیا کہ میرے روزے پہ کوئی فرق پڑا یا کہ کوئی معافی مل سکتی ہے آپ سے؟ کیا آپ مجھے استغفر پلیز معاف اللہ، کر دیں؟ استغفر اللہ ربی بات ہوئے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ نے جینوئن ریزن بتا دی تھی، ٹائم پہ بتا دی تھی، اس لیے پھر مجھے یہاں سے جانا پڑا آج۔ کوئی بات نہیں، مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ آپ یقین کریں مجھے جب تک مجھے کوئی نہیں، استغفر اللہ، نہیں نہیں کوئی، مجھے بڑی سعادت ملی۔ ہماری خدائی ہے، ہم اس غلطی کو مانتے ہیں۔ استغفر اللہ، میں اپنے لیے مہربانی آپ نے اس طریقے سے سوچا ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں اپنے بھائی بہنوں سے یہ کہوں گا کہ جب آپ والنٹیئر ہیں مثلا کفن دفن کمیٹی کے، تو پلیز آپ اتنے غافل نہ سوئیں کہ میت کو غسل نہ دیا جا سکے۔ ظاہر ہے طے تو یہی تھا کہ میں نہیں آؤں گا، مگر میں نے جب یہاں دیکھا 11:15 سے پہلے بیچارے میت والے آ گئے، ان کے فرزند آ گئے، ان کے داماد آ گئے، تو اللہ بھلا کرے حاجی منظور میاں کا وہ پہنچ گئے بیچارے، ان کے ساتھ بھی ایک اور دوسرے آدمی نے آنا تھا وہ بھی نہیں آیا، کوئی پھر اویلیبل نہیں تھا، تو مجبوراً پھر مجھے میرے خیال میں 11 بجے، شاید میں 10 بجے اٹھا تھا اور شاید 11 بلکہ 11 سے بھی پہلے میں نکل گیا ہوں اور واپس میں تقریباً 6 بجے پہنچا ہوں۔ کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ آپ نے یہ سوچا، میں اس کو اپنے لیے سعادت سمجھ رہا ہوں کہ اس سیدزادے کا غسل شاید میرے نصیب میں لکھا تھا، اور شاید اللہ نے مجھے میرے گناہ معاف کرنے ہوں اس سیدزادے کی وجہ سے، جو ان ایکسپیکٹڈ۔ ظاہر سی بات ہے میں تقریباً کوئی 8 بجے سویا تھا اور 10 بجے میں اٹھ گیا، 2 گھنٹے ٹوٹل۔ وہ 2 گھنٹے بھی کم ہی سویا ہوں، کیونکہ کچھ مہربانوں کی کالیں آ رہی تھی جو آج کل برا بھلا کہہ رہے ہیں، ان کی کالیں صبح سے ہی آ رہی تھی، تو وہ کہہ رہے تھے، بہت زیادہ میسیجز بھیج رہے تھے۔ اللہ کریم ان کو ہدایت بھی کرے، اللہ انہیں صحت بھی دے اور ان کی رونق بھی لگی رہے۔ بہرحال وہ ماشاءاللہ آپ قبلہ بہت عرصے سے ہماری خدمت کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ نے میرے والدہ صاحب کے گزر کا اہتمام کیا اور میرے انکل کا انکل کلان بھی مرحوم کا بھی انتظام کو فرمایا۔ آپ تو ماشاءاللہ فی سبیل اللہ اس کام کو کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی دے۔ آج تک آپ نے اس مسئلے میں میت کے معاملات میں کبھی کسی سے کوئی پیسہ ڈیمانڈ نہیں کیا، نہ ہی ہم دیتے ہیں آپ کو۔ بڑی مہربانی، اللہ خوش رکھے آپ کو۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا میت کا جنازے کا پیسہ میں نے تو زندگی میں سوچا بھی نہیں، لینا تو خیر بہت دور کی بات ہے۔ یہ نہیں کہ یہاں پر جب ہم غریب طالب علم تھے، جب ہمارے پاس کرائے کے پیسے بھی نہیں ہوتے تھے، جیسے 8 ہوتی تھی مثلا، اور 4 آنے جانے کا اور 4 آنے آنے کا کرایہ تھا، اور ہمارے پاس 4 آنے نہیں ہوتے تھے کہ ہم چائے پی لیں، تو ہم چائے نہیں پیتے تھے، مگر ہم نے کبھی جنازے کے پیسے نہیں لیے۔ بہت شکریہ، اللہ آپ کو عزت دے۔ آپ نے بہت خدمت کی اور پھر بھی کریں گے، آپ دعا کریں آپ سے، اور ہم اس طرح آپ کی خدمت نہیں کر کوئی بات نہیں، اللہ آپ کو چاہتے ہیں۔ خدا آپ کو سلامت۔ یہ ہے کہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بند کر دیا ہے، تو دوسری طرف ہم لاک اپ ہوئے ہیں۔ یہ کس کی پہلے رہائی ہونے والی ہے؟ شیطان تو لاک اپ ہو گیا ہے اور ہم پہلے سے لاک اپ ہیں، تو انشاءاللہ ہماری رہائی جلدی ہوگی، انشاءاللہ رمضان میں ہماری رہائی ہوگی۔ آج بلکہ ایک اچھی خبر یہ ہے کہ آج
मैंने मौलाना वसीम अब्बास मलिक के प्रोग्राम में आज ये कहा था कि एक मेरे क्लास फेलो हैं कुम के, बहुत ही हस्ती है पहुंची हुई, अरबों अरबों की पढ़ाई उन्होंने की है, रूहानियात में उनका बड़ा नाम है, बड़ी उन्होंने किताबें लिखी हैं, कोई 50 किताबें लिख चुके हैं, मुझसे ज़्यादा, मेरी किताबें तो बहुत कम है। वो रूहानियात के इल्म में, उलूम गरीबा में वो बड़े माहिर हैं। उन्होंने आज मुझे कहा है कि एक विर्द है जो किसी ने उनको अता किया है, वो कहते हैं सुबहान अल्लाह पढ़े सब लोग, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। उनका कहना ये जल्दी, बहुत जल्दी ये कोरोना दफा हो जाएगा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आप तमाम हजरात से मैं कह रहा हूँ शुक्रिया हाजी साहब, हाजी मोहम्मद अजीज चट्टा हमारे साथ शरीक हुए, हम बड़े ममनून हैं आपके, कोई नाराजगी नहीं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। मुझे अल्लाह ने इज्जत दी, मुझे तौफीक दी, मैं खुद गया, मैंने अपने हाथ से काज़मी सैयद को गुस्ल दिया, हुनूत किया, कफन पहनाया, करबला का कफन पहनाया, और मैंने उनको एहराम भी, वो एहराम रख के गए थे वसीयत में, एक एहराम का पैर मैंने नीचे रखा, एक ऊपर रखा अल्हम्दुलिल्लाह, और ऊपर बाकायदा वो मियाँ मंजूर को भेजा, पंजाब ग्रोसरी से वो ले आए, अपना मार्कर ले आए, क्योंकि छोटे कलम से वो लोग लिख रहे थे, तो मार्कर से पूरा लिखवा के बाकायदा अल्हम्दुलिल्लाह मैयत को रखवा के वापस आया। माशाअल्लाह, 6 बजे से पहले अल्हम्दुलिल्लाह फिलाडेल्फिया पहुंच भी गया था, गया भी हूँ, आया भी हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह इबादत में शुमार करे, रिया में शुमार न करे। आपके एक मेहरबान ने, हाँ, आपके एक मेहरबान ने लिखा है, ये तो माशाअल्लाह बहुत अजर अजीम है, बहुत बड़ी मेहरबानी। आपके एक मेहरबान ने लिखा है कि मैं दिहाड़ी लगाने जाता हूँ। आज भी मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर समझ के कह रहा हूँ, मैंने अपने हक हलाल की कमाई में से एक शख्स को पैसे दिए हैं, उस दिन भी दिए थे, आज भी दिए हैं। उस दिन अलबत्ता जो मैंने पैसे दिए थे वो मेरी भतीजी रिफत सफ़ीर ने, मेरे भाई सफ़ीर साहब किबला की बेटी ने दे दिए थे। आज के मैंने दिए वो खुद थे, उन्होंने मुझे दे दिए थे कुछ पैसे। तो आज मैंने अपनी हक हलाल की कमाई से एक साहब को पैसे दिए हैं, जिनको मैंने स्पेशल बेचारों को बुलाया था, और ये कह रहे हैं मैं दिहाड़ी लगा रहा हूँ। अल्लाह ताला इनको हिदायत करे, और पता नहीं क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई बात नहीं, अल्लाह खुश रखे उनको, बड़ी मेहरबानी, सलामत रहे। नहीं कोई बात नहीं, मैं इसको अपने लिए कोई बात नहीं, मैं खुदा न खास्ता में जो है वो ही निकलेगा। मैं ये नहीं कहूँगा, हो सकता है मेरे अंदर कोई कुताही हो, अल्लाह मेरी कुताही को दूर कर दे, कोई बात नहीं। वो भी हमारे भाई हैं, बच्चे हैं हमारे, कोई मसला नहीं। सामने आते हैं तो इतने झुक झुक के सलाम करते हैं, कोई बात नहीं। अल्लाह ताला उनको खुश रखे, सलामत रखे। ये तो फिर मुनाफिकत हो गई ना, झुक के सलाम करना और बात। चलिए, अल्लाह आपको सलामत रखे, अपना ख्याल रखिएगा, फिर हाजिर होंगे। खुदा हाफिज, सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी वालेकुम अस्सलाम। आगा क्या हाल है, कैसे हैं इमरान? कैसे हैं इमरान मियाँ? ठीक है माशाअल्लाह, आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, शुक्रिया। घर में सब खैरियत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी सेहत ठीक है? प्रोग्राम आपका जी बिल्कुल ठीक है। तो ये लाइव चल रही कल? ये लाइव है हर रोज 9 से 10। अच्छा। ऊपर जब लाइव लिखा हुआ हो, जब ऊपर लाइव लिखा हो तो वो लाइव है। माशाल्लाह। तो अगर सिर्फ मैंने यही बताना था कि भाई ये जो जहाद आप कर रहे हैं ना, ये जहाद है, और ये जहाद एक वो होती है ना कि आपको जब जाते हैं जहाद पे तो वो गोली आ रही होती है तो उसका पता नहीं होता, और एक होता है खुला आमने सामने होता है, वो कहते हैं ना मैन टू मैन फाइट। जी। तो ये जो आप जिस तरीके से कर रहे हैं, उनको नहला रहे हैं, उनकी सारा बंदोबस्त कर रहे हैं, ये इसका अजर सिवाय अल्लाह की और मौला के कोई दे नहीं सकता, और इसको कोई समझ नहीं सकता। मैं नहीं समझता किसी के अंदर इतनी जरूरत हो कि वो अपने सामने नजर आए कि इस चीज की वजह से मुझे मौत मेरी करीब हो सकती है, और उसके अंदर कोई हाथ डाले। तो मौला की जात आपको अजर दे। मैं तो सिर्फ यही कह सकता हूँ कि इसके लिए कोई अल्फाज नहीं है। अल्लाह आपको सलामत रखे, बड़ी नवाजिश मैं खुदा के लिए कर रहा हूँ, और इंशाअल्लाह मज़ीद भी करता रहूँगा। बहुत खूब आपने कॉल की। चौधरी इमरान मेहदी गोंदल हैं, ये माशाअल्लाह गोंदल कंपनी के डायरेक्टर भी हैं, और बहुत हमारे अजीज़ भी हैं। टोरंटो से इन्होंने कॉल किया। अल्लाह आपके रिज़्क़ माल में बरकत दे, अल्लाह आपके पार्टनर्स के तमाम घर वालों के रिज़्क़ माल बरकत दे, आपकी वालदा को सेहत दे, बहन भाइयों को सलामत रखे। वालिद साहब हाजी डॉक्टर मनशा
साहब के दर्जात बुलंद हों और दीगर मरहुमीन के। बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। माशाल्लाह ये फ़िक़्ह सेशन नंबर 1 बड़ा कामयाब जा रहा है। अल्लाह आपको सलामत रखे, बड़ी मेहरबानी। हाजी मोहम्मद नज़ीर चट्ठा जज्बाती हो गए थे, बड़ा शुक्रिया उनका, बड़ी मेहरबानी। इन्होंने भी बड़ी इनकरेजिंग कॉल की। हमारे बरखुरदार इमरान मेहदी गोंदल ने, अल्लाह इनकी ज़िंदगी दराज करे, इनके बच्चों की भी, इनके तमाम अज़ अक़रबा की। और टोरंटो वाले सारे सलामत रहें, न्यूयॉर्क वाले भी इंशाअल्लाह, अमेरिका कनाडा वाले, बल्कि सब के सब। हमारे अल कुरान वाले भी ना मालूम देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, न्यू जर्सी वाले भी देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, तो कम से कम शामिल हों आप लोग। आपकी खातिर मैं ये मेहनत कर रहा हूँ और एक बेहतरीन से बेहतरीन सेशन करूँगा। हर रोज़ ज़बरदस्त टॉपिक लेके उस पर बेहतरीन मटीरियल भी पेश करूँगा। तो तक़लीद की बाबत ये जहन में रख लीजिए कि तक़लीद ज़रूरी है, तक़लीद वाजिब है। अगर तक़लीद न की तो आमाल आपके कबूल नहीं होंगे। अगर आज तक तक़लीद नहीं की, आज तक़लीद कर लें तो साबिक़ा सारे के सारे आमाल कबूल हो जाएंगे। मुज्तहिद के पास जाने की ज़रूरत नहीं, उनके वकील के पास जाने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ आप नियत कर लें कि मैं आज आयतुल्लाह उज़्मा हाफ़िज़ बशीर हुसैन नजफ़ी की तक़लीद कर रहा हूँ, आयतुल्लाह उज़्मा आग़ा सिस्तानी की तक़लीद कर रहा हूँ, आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली ख़ामनाई की तक़लीद कर रहा हूँ, आयतुल्लाह उज़्मा नासिर मकारिम शिराज़ी की तक़लीद कर रहा हूँ। किसी की भी, बहुत सारे मुज्तहिदीन हैं, मैं इंशाअल्लाह बता भी दूँगा, सारे नाम बता दूँगा आपको जिनकी तक़लीद हो सकती है, जो आलम है। आप हज़रात व ख़वातीन मुलाज़ा फरमा रहे हैं, ये प्रोग्राम हर रात को आएगा 9 से 10 बजे तक। फ़िक़्ह सेशन होगा, इसमें आप जूरिस्प्रूडेंस के बारे में सवाल करेंगे, हलाल हराम के बारे में, मकरूह मंदूब के बारे में, मुबाह के बारे में। एक और कॉलर है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर साहब, तस्लीम ज़मान कनाडा से दोबारा आपको ज़हमत दे रहा हूँ। एक सवाल अक्सर मेरे जहन में उभरता रहा है कि जो पहली जो शरीयतें जो नाफिज थी और जो लोगों ने पहली शरीयत के मुताबिक मुख्तलिफ अदवार में अमल किया, तो क्या वो मतलब जो है इस जो अभी जो मौजूदा शरीयत है इसके आने के बाद वो मनसूख हो गई, और जो उन लोगों ने उस शरीयत के मुताबिक अमल किया तो वो अल्लाह के करीब है, जो जिन्होंने अमल किया और उनका ठिकाना भी जन्नत ही होगा। बिल्कुल, उन्होंने अपनी अपनी शरीयत के मुताबिक जो अमल किया, बिल्कुल वो ठीक है और वो जन्नत में है और जन्नत में होंगे। बहुत शुक्रिया, क्योंकि उस वक्त शरीयत मोहम्मद नहीं थी। बहुत नवाजिश, जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। आप कॉल कर सकते हैं 8562665786 पर, शरीयत का कोई मसला पूछ सकते हैं। मुझे आज बड़ी खुशी हुई कि जब आज हम गए थे गुस्ल देने के लिए, हसन काज़मी जो हमारे अलहाज सैयद एहतशाम रज़ा काज़मी के कज़न हैं, उनको जब हम गुस्ल देने गए तो उनके बच्चों ने एक एक चीज़ पूछी। माशाल्लाह मुझे बहुत खुशी हुई, बच्चे बड़े नेक थे। उन्होंने पहले नमाज़ पढ़ी, सब के सब ने, हाजी मंजूर समेत उन दोनों बच्चों ने और फ़हीम बुखारी ने, जो अलहाज एहतशाम काज़मी के भांजे भी हैं और हसन काज़मी मरहूम के दामाद हैं, सब ने पहले नमाज़ पढ़ी। मुझे बहुत खुशी हुई। पहले नमाज़ पढ़ी, नमाज के बाद हमने गुस्ल दिया। मैंने भी नमाज़ पढ़ी, पहले नमाज मैंने पढ़ी, फिर इन चारों ने नमाज़ पढ़ी, फिर हमने गुस्ल दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो ये खुशी हुई फ़िक़्ह सेशन में कि कम से कम हमारे जवान जो हैं नमाजी, बहुत अच्छी बात है। मैंने हसन काज़मी की रूह को भी और अलहाज एहतशाम काज़मी को भी, काज़मी फैमिली को भी, बुखारी फैमिली को भी सैल्यूट किया कि उनके बच्चे कम से कम नमाजी हैं। फिर उन्होंने एक एक चीज़ मुझसे पूछ के बाकायदा, जो हमने पत्तों का जो गुस्ल दिया, जो हमने काफूर का गुस्ल दिया, जो आब खालिद से गुस्ल दिया, या पहले जो हमने ततहीर की बॉडी की। शुक्र खुदा है कि शरीयत, फ़िक़्ह और दीन की तरफ जो रग़बत है हमारी यूथ की, ये काबिल सताइश है। एक कॉलर और हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम अलैकुम मौलाना साहब, रमजान बहुत बहुत मुबारक हो। अलैकुस्सलाम, अलैकुस्सलाम। रमजान करीम इंशाअल्लाह सिस्टर, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह मुस्लिम के दर्जात बुलंद करे, अल्लाह आपको सलामत रखे।
मौलाना साहब तकलीद का मतलब क्या होता है कि इमाम किसी मर्जी की तकलीद करनी होती है कि वो तकलीद का मतलब तकलीद का क्या मतलब ये है कि आपने उन मर्जा के फतवा के मुताबिक अमल करना है। वो जिसे हलाल कहे हलाल, जिसे हराम कहे हराम, जिसे मकरूह कहे मकरूह, जिसे मुस्तहब कहे। असल में हलाल मोहम्मद है, असल में हराम मोहम्मद है, असल में मंदूब मोहम्मद है, मकरूह मोहम्मद है, मुबाह मोहम्मद है। हमें वो समझाते हैं कि ये हलाल है, ये हराम है, ये जायज़ है, ये नाजायज़ है, ये मकरूह है, ये मुस्तहब है, ये मुबाह है, इसमें सवाब होगा, इसमें इक़ाब होगा। लिहाजा हम उनके फतवा पे चलेंगे। मौलाना साहब हमने भी नमाज शब में क्या 8 रकत के बाद बीबी सैदा की तरजीह पढ़ी जाती है हर 2 रकत में? नहीं, आखिर में आखिरी में 8 रकत के बाद आखिर में 2 रकत में पढ़ते, तो वही हमने अभी किताब में एक में देखा था। होल्ड फरमाइएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम 2 से सलाम। 3 मिनट चाहिए। ये सिस्टर मुस्लिमी आपकी तरफ वापस मैं आऊँगा, ये मैं कॉल ले लूँ। आप लाइव हैं जनाब अलमहदी टीवी पर फ़िक़्ह सेशन नंबर 1 में। आज हमारा उन्वान है तकलीद। फरमाइए, कुछ कहना चाहेंगे? जी, तकलीद के हवाले से चूँकि हर दफ़ा ये रुयत हलाल के बारे में सवालात होते हैं, तो उसी बारे में कॉन्फर्मेशन मैं लेना चाह रहा था कि जब हम देखते हैं कि मशरिक़ और मगरिब के दौरान उफ़क़ के मुतालिक फ़र्क होता है, मगर एक ही जगह पर जब मिडल ईस्ट में चाँद नज़र आ जाता है और यहाँ पर चाँद नज़र नहीं आता, तो चूँकि चाँद की एज जो है वो मशरिक़ से मगरिब की तरफ बढ़ती चली जाती है और मगरिब में चाँद नज़र आना निस्बतन आसान है, तो इस हवाले से मुज्तहिदीन या जो उनकी क्या आरा हैं? बहुत शुक्रिया। इस पर इंशाअल्लाह आप सफ़ीर अलवी बोल रहे हैं? जी, सफ़ीर बात कर रहा हूँ। अच्छा, सफ़ीर, हमारे एक सफ़ीर अलवी चले गए ना, तो हम आपका नाम हमें बड़ा प्यारा लगता है। बल्कि जब आपकी कॉल आती है तो मुझे वो भाई सफ़ीर याद आ जाते हैं जो फौत हो गए, मौलाना साहब जो थे ना, आप उनको जानते थे? जी, मैंने उनका नाम सुना था। हाँ, वो फौत हो गए ना। मग़फ़िरत फरमाए। हाँ, तो आपकी जब कॉल आती है तो मुझे उनका वो याद आ जाते हैं। कल परसों भी आपकी कॉल आई थी ना, तो इसलिए मैंने आपकी आवाज़ पहचान ली। तो ऐसा है सफ़ीर अलवी कि इस पर हम इंशाल्लाह पूरा एक प्रोग्राम करेंगे। आज अगर इस वादी में दाखिल हो जाएं तो ये तिश्ना रह जाएगा उन्वान। रोयत हिलाल पे हम एक पूरा एक प्रोग्राम करते हैं, हो सकता है कल ही करें, कल ही हो सकता है। अलबत्ता मैं इतना बता दूं कि रोयत हिलाल जो है ये आपका लोकल इशू है, ये तकलीद का इशू नहीं है। अलबत्ता अगर मुज्तहिद के जरिए आपको तस्दीक हो जाए तो फबिहा, वरना ये आपका लोकल इशू है। ऐने मुमकिन है हमारे मुज्तहिद के पास नजफ या कुम में चांद नजर आ गया हो मगर हमारे अमेरिका में ना आया हो, तो वो जाहिर सी बात है ये हमारा लोकल इशू है। अलबत्ता सपोर्टिव जरूर है, इसकी हम डिटेल से बहस कर लेंगे। बहुत शुक्रिया, आप शामिल हुए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपके ताया को, आपके चचा को अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, आपके वालिद की ज़िंदगी दराज हो, आपकी, आपके पूरे ख़ानदान की। बहुत शुक्रिया। ये सफ़ीर अलवी है, जैसे ही कॉल करते हैं इनका नाम भी अजीब इत्तेफाक से ज़ाहिरन सफ़ीर हुसैन अलवी है। हमारे भाई भी सफ़ीर हुसैन अलवी बेचारे फौत हो गए, तो इनकी जब कॉल आती है तो मैं फिर अपने उस भाई सफ़ीर को याद करता हूँ कि कैसे वो कॉल करते थे। रहमहुल्लाह, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, और बाकी भी जो हमारे सजाद अली शाह को भी अल्लाह जन्नत में जगह दे। आप हजरात ख़वातीन अगर कॉल करना चाहें तो अभी कुछ टाइम बाकी है, आप कॉल कर लीजिए। कुछ लोगों की कॉल्स मिस हो जाती हैं तो प्लीज़ दोबारा कॉल कर लें, मेहरबानी होगी। अल्लाह करीम आपको सलामत रखे। 9 से 10 भूले नहीं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा इंशाअल्लाह कल। बल्कि हम इंशाअल्लाह रोयत हिलाल पे ही पूरा जो सिलसिला गुफ्तगू होगा कल रोयत हिलाल पे होगा। मैं गुजारिश करूँगा तमाम से, अल कुरान सेंटर वालों से, अलमहदी सेंटर वालों से, हौज़ा इल्मिया वालों से, अलमहदी फाउंडेशन वालों से, इमाम बारगाह वालों से, हुसैनिया टोरंटो वालों से, बल्कि तमाम कौम से, नॉर्थ अमेरिका से और पूरी दुनिया से, कि आप हजरात ख़वातीन शामिल हों और मेहरबानी फरमाएं, इससे इस्तेफादा करें। एक कॉलर देखते हैं कौन है। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप अंकल? सलामुन अलैकुम।
अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत है, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। मुझे बहुत ही फेवरेट टॉपिक मेरा डिस्कस हो रहा है आज। मुझे आपसे इसके बारे में एक क्वेश्चन है जी। कि ये जो तकलीद है इसका प्रोसेस हम किस तरह से डिसाइड करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुज्तहिदीन हमारे दरमियान मौजूद हैं, तो हम किस तरह से एज ए इंडिविजुअल डिसाइड करें कि मुझे इनकी तकलीद करनी है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या अगर हम एक से ज्यादा मुज्तहिद की तकलीद कर सकते हैं या हमें सिर्फ एक ही की करनी है एक वक्त में? ठीक है, आप बात करती रहें, मैं जवाब करता हूँ। ये रिफत सफ़ीर है, हमारे मौलाना मलिक सफ़ीर हुसैन अलवी साहब किबला की साहिबजादी हैं, अल्लाह सलामत रखे आपको। आपने कॉल की, आपने सवाल किया, एक से ज़्यादा मुज्तहिदीन की तकलीद हम नहीं कर सकते, अलबत्ता किसकी करें, कैसे करें, मैं अभी आज ही नाम बता दूंगा। जितने नाम मैं बताऊंगा नंबरवार, इन सब में से किसी एक की भी तकलीद कर लें, इंदल्लाह इंशाअल्लाह कबूल होगी। जो आपकी ज़बान बोल सकता है मुज्तहिद या आपकी अप्रोच में है, एक्सेस ज़्यादा है, उनकी कर लें। तसावी हो अगर इल्म में तो कोई कबाहत नहीं। एक कॉलर और है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मौलाना साहब शब्बर अब्बास, कैसे हो शब्बर आगा? ठीक हो? खैरियत से हैं मौलाना? आपने तकलीद का उन्वान आज रखा है जी। कुछ सवाल आपसे। एक सवाल ये था कि जब नौजवान बलागत की तरफ पहुंचता है, बलागत की मंजिल पर, तो उसको अंदाजा ये नहीं होता कि जितने भी मराजे हैं उनमें से किसकी राय क्या है, वो उसके पास उनके रिसाले मौजूद नहीं होते। तो क्या बेहतरीन अमल होगा उसको ये हिदायत देने के लिए कि वो किसकी तरफ रुजू करे? आजकल तो शबर ऐसा है कि तकरीबन ऑनलाइन तमाम मराजे के फतावा मौजूद हैं, उनके रिसाला हाय अमलिया मौजूद है, उनकी तवाज़ीहुल मसाइल मौजूद हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स थ्रू आउट हैं। और आजकल तो कोई मुश्किल नहीं है, वो यूं करें कि जैसे अभी मैं अर्ज करूंगा, बताऊंगा, आप बात करते रहें कि कुछ मुज्तहिदीन इतने हैं, ऐसे हैं कि जिनमें से किसी की भी आप तकलीद कर लें तो इंशाअल्लाह इंदल्लाह मकबूल है। मैं बता दूंगा, जो आज बुलूग तक पहुंच रहे हैं जवान बच्चे, उनको चाहिए अपने लोकल उलमा से राबिता करें ताकि वो उनकी मजीद गाइडेंस कर दें, या ऑनलाइन मराजे के दफातर से राब्ता कर लें। आज आप सवाल लिखते हैं, कल आपको जवाब आ जाता है। मैं खुद भी अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मराजे का वकील हूँ और आयतुल्लाह उज़्मा हाफिज बशीर हुसैन नजफी का वकील मुतलक हूँ। कुम के, नजफ के तमाम मराजे का मैं वकील हूँ। मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं, मेरे ऑफिस से भी रब्ता कर सकते हैं। हम इंशाअल्लाह जवानों पे ख़ास काम करेंगे, बल्कि आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, आप यूथ में बहुत पॉपुलर हैं, आप आगे आएँ, बल्कि हमें हमारी मदद करें इस सिलसिले में, ताकि हम अमेरिका की जो यूथ है इनको हम इंशाअल्लाह एजुकेट करें और अल्लाह के फजल करम से इन्फॉर्म करें और रिफॉर्म करें। बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए। शब्बर आगा ने हमें कॉल की न्यूजर्सी से, माशाल्लाह सब देख रहे हैं, कनाडा वाले, न्यूजर्सी वाले, न्यूयॉर्क वाले, माशाल्लाह। पेंसिल्वेनिया वालों की कॉल्स नहीं आ रही, ये इनसे देखना पड़ेगा क्या वजह है, ये क्यों इनको अप्रोच नहीं या हमसे नाराज़ हैं, ये कॉल नहीं कर रहे हैं। तो आपकी खातिर तो हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, तो आप मेहरबानी करके शामिल हों। पेंसिल्वेनिया वाले भी और डेलावेयर वाले भी शामिल हों, मैरीलैंड वाले भी, वर्जीनिया, शिकागो, ह्यूस्टन, कनाडा, बल्कि ब्रिटिश जो कंट्रीज़ हैं वो भी, वेस्ट ईस्ट, सब आप आ सकते हैं माशाल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। तकरीबन कुछ चंद मिनट और बाकी हैं, मैं अभी चंद मिनट और आपकी खिदमत आलिया में मौजूद हूँ। अगर आप कॉल करना चाहें कॉल कर सकते हैं। रिफत सफ़ीर का जो सवाल है वो अभी तिश्ना है, और इसी तरह के सफ़ीर अलवी का भी, ये जूनियर सफ़ीर अलवी हमारे यहाँ, जैसे जॉर्ज बुश सीनियर और जॉर्ज बुश जूनियर, तो मैं ये कहूँगा कि हमारे सफ़ीर अलवी सीनियर चले गए, सफ़ीर अलवी जूनियर है। आप यकीन करें, मुझे भाई सफ़ीर से इतना प्यार था कि इस बच्चे की जब भी कॉल आती है, यकीन करें मैं खुश हो जाता हूँ। एक दिन मैं सो रहा था, सोते में इसकी कॉल आई, मैंने सोते में उठ के जवाब दिया, सिर्फ भाई सफ़ीर की वजह से। एक कॉलर है, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपकी आवाज़ सर नहीं आ रही। बहुत अफसोस हो गया पहले तो जी, अफसोस ताज़ियत कबूल करें
شکریہ. وہ دوسرا کوشچن ہے کہ رمضان میں اسٹیم لے سکتے ہیں روزے کے دوران؟ کیا لے سکتے ہیں؟ اسٹیم اگر وہ ہاں جیسے یہ کورونا کے خطرے کے لیے لینی ہوتی ہے نا، جی ہاں یہ لے سکتے ہیں بشرطے کہ وہ حلق سے نیچے نہ جائے. اگر حلق سے نیچے جا رہی ہے تو وہ پھر جائز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، روزہ باطل ہو جائے گا. کون صاحب فرما رہے ہیں؟ تقرب اللہ سلامت رکھے آپ کو. آپ سے تو بڑی محبت کرتے تھے میرے بھائی سفیر، بہت آپ کا تو یاد کرتے تھے آپ کو بہت. اللہ آپ کو سلامت رکھے. جی میرا ان سے تھا، جی ان کے دماغ سے ارشد قریشی سلامت رہیں، آباد رہیں. شکریہ. ایک کالر اور ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مختار حسین کر رہا ہوں. کیسے آغا ٹھیک ہیں؟ دو رمضان کی شابہ جی قبلہ، ماشاء اللہ آپ کا پروگرام سن رہے ہیں، تقلید کے موضوع پہ بڑی سیر حاصل گفتگو ہو رہی ہے، سوالات جواب. مہربانی. بیٹے علی نے بھی سوال کیا. میں ایک تو اپنی طرف سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ احتیاط واجب کے بارے میں فرما دیجیے گا. جو آپ احتیاط واجب، اگر آپ کے مجتہد جیسے آغا سیستانی نے ایک چیز کو احتیاط واجب کہا ہے تو آپ آغا بشیر کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، یہ جائز. جی فتوے سے فتوے کی طرف رجوع نہیں ہو سکتا، احتیاط واجب سے رجوع ہو سکتا ہے. احتیاط واجب کی ضرورت ذرا تھوڑی سی. احتیاط واجب وہ ہوتا ہے جس میں مجتہد کو فتوے کے حد تک یقین نہیں ہوتا، سمجھ لیں کہ وہ 90% 95% اس کو سمجھتا ہے، 5% ان کو ابھی تک شبہ ہوتا ہے، اس لیے وہ احتیاط واجب کہتے ہیں، فتویٰ نہیں کہتے. قبلہ آج پتہ چلا حسن کاظمی صاحب کی انتقال پر ملازم کی انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ لانگ آئلینڈ سے ان کا تعلق تھا مگر آپ آئے نہیں، آپ کے انتظار کرتے رہے. قبلہ میرا آپ کو پتہ ہے کچھ صحت کے اچھا اللہ کو شفا دے. کوئی بات احتیاط واجب کے طور پہ سمجھ لیں کہ میں بھی چلیے کوئی بات نہیں، کوارنٹین کی وجہ سے. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. اللہ کریم آپ کو شفا دے. میں ہمیشہ آپ کو نہیں آپ ہمیشہ ساتھ رہیں. آج تو بالکل کسی نے ساتھ ہی نہیں دیا. آج تو میں اپنے آپ کو بڑا غریب محسوس کر رہا تھا، اکیلا تھا، آج بالکل اکیلا تھا، اس لیے یہاں سے جانا پڑا. پورے شہر کو آپ تو خیر بیمار ہیں، آغا اصغر نقوی بھی بیچارے وہ بھی بیمار ہیں. مجھے حیرت یہ ہوئی کہ شہر میں سے کوئی بھی نہیں آج آیا. آپ کے جو غدیری بھائی ہیں چٹھا، وہ بھی آج کہیں پھنس گئے تھے، تو میں آج غریب اکیلا. ایک بیچارے وہ حاجی منظور آئے اور مرحوم کے 2 بچے آئے اور ان کے داماد ہیں. کوئی بات نہیں، مجھے اللہ نے فیملی کے ساتھ بچوں کے ساتھ پروگرام مکمل سن رہے ہیں آپ کا. علی نے تو پہلے سوال کیا، اللہ فیملی کو بھی سلامت رکھے، بچوں کو بھی، پورے نیو یارک والوں کو. آپ محنت بھی کریں، ذرا لوگوں سے کہیں آج پروگرام شروع ہو گیا ہے. آج کا پروگرام جو اسپانسر کیا ہے، آج کا سپارہ بھی، پہلا جو درس قرآن تھا وہ بھی، اور درس فقہ بھی، ماشاء اللہ. اس طریقے سے سب کو کہیں پلیز، انشاءاللہ جو 30 پارے پڑھیں گے وہ قرآن صحیح پڑھیں گے. حاجی محمد رزاق گجر کو میں سیلوٹ کرتا ہوں، جنہوں نے آج یہ ہمارے سارے پروگرام اسپانسر کیے ہیں. اللہ انہیں جزائے خیر دے. ان کے والد مرحوم حاجی رحمت خان، حاجن راج بیگم، چودھری محمد نواز، چودھری محمد عارف، چودھری ولایت حسین، مسز محمد نواز کو اللہ جنت میں جگہ دے. آپ کے والدین کو، آپ کی بیگم کے والدین کو اللہ جنت میں جگہ دے. حسن کاظمی جو آج چلے گئے، اللہ ان کو جنت میں جگہ دے. شکریہ، سلامت رہیں. قبلہ یہ فرمائیں کہ دعا کا جو سیشن میرا خیال آج میں نے تو آن کیا، دعا ہو گئی تھی اس میں لگا دی تھی. اب انشاءاللہ ان سے کہیں گے کہ وہ دعا میں آپ کو لے لیا کریں. مسئلہ یہ ہے کہ یہاں سے کوئی ٹی وی کا پروگرام سیٹ نہیں ہو پا رہا، یعنی آپ کی آواز آ سکتی ہے، آپ کی ویڈیو نہیں آ سکتی. اگر چاہیں گے تو آواز آپ کی دے دیا کریں گے، کوئی مسئلہ نہیں. آپ کی یا کسی اور کی انشاءاللہ کل سے اس کو کریں. صبح کی ایک اور گزارش کرنی تھی، جیسے شام کے وقت دعا کے اس میں اللہم رب النور جو دعائے احد ہے وہ بھی لگائی تھی، وہ بھی لگائی. اچھا جی، وہ بھی لگی ہے. دعائے افتتاح بھی لگی ہے الحمدللہ. دعائے سحر بھی لگتی ہے، دعائے امام زمانہ بھی، سب لگتی ہے. جی اچھا جی، آپ سے بحث کر لیں گے انشاءاللہ. حاضر ہیں. شکریہ. میں تو ساری رات آن رہتے ہیں الحمدللہ. آپ سے بات کر لیں گے تھوڑی دیر میں، آپ سے بات کر کے سحر بھی پڑی ہے صبح. ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ سے بات کر کے انشاءاللہ کوارڈینیٹ کر لیں گے. بہت شکریہ، اللہ آپ کو صحت دے. محترم ناظرین و ناظرات، آلموسٹ پروگرام ہمارا ختم ہونے والا ہے، مگر چند منٹ اور میں انتظار کرتا ہوں. کچھ لوگوں کی کالز مس ہو رہی ہیں، پلیز وہ کال بیک کر لیں، مہربانی ہوگی.
जो कॉल जिनकी मिस हुई हैं बाद में नाराज़ ना हो जाएं, ज़रा डर लगता है कि मोमिन नाराज़ ना हो। अल्लाह करीम आप सबको जिंदा और सलामत रखे। और आप माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम हो गया, ऑलमोस्ट 1 घंटा होने वाला है, 1-2 मिनट बाकी हैं, देखते हैं कि आखिरी कॉल है, लास्ट कॉल प्लीज़, लास्ट कॉल। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। किबला सवाल ये है कि क्या कि इस तकलीद को हम चेंज कर सकते हैं? अगर एक मुजतहिद की तकलीद की हुई है और उसको छोड़कर दूसरे मुजतहिद की तकलीद कर सकते हैं? नहीं, एक मरजा की तकलीद छोड़कर दूसरे मरजा की तकलीद नहीं हो सकती अनलेस कि आपको यकीन हो जाए कि आपका मरजा थोड़ा इल्म रखता है और दूसरा मरजा ज्यादा इल्म रखता है। अगर ऐसा हो तो फिर बेशक आप तकलीद तब्दील कर सकते हैं, वरना नहीं। मैं ये बल्कि आपके सवाल के जवाब ही में मैं ये भी बता दूं, नोट कर ले ज़रा, ये आप ज़रा गिनते आए। नंबर 1 आयतुल्लाह उज़्मा हाफिज बशीर हुसैन नजफी, ये मैं मुज्तहिदीन के नाम गिनवा रहा हूँ, जिनमें से जिसकी भी तकलीद कर लें इंशाअल्लाह जायज़ है। आयतुल्लाह उज़्मा हाफिज शेख बशीर हुसैन नजफी। नंबर 2 आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली सीस्तानी। नंबर 3 आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली खामनाई। नंबर 4 आयतुल्लाह उज़्मा नासिर मकारिम शिराजी। नंबर 5 आयतुल्लाह उज़्मा शेख इसहाक फयाज। नंबर 6 आयतुल्लाह उज़्मा आगा हकीम सईद अल हकीम। नंबर 7 आयतुल्लाह उज़्मा वहीद खुरासानी। नंबर 8 आयतुल्लाह उज़्मा साफ़ी गुल पैगानी। नंबर 9 आयतुल्लाह उज़्मा शुबैरी जंजानी। नंबर 10 आयतुल्लाह उज़्मा शेख जाफ़र सुबहानी। नंबर 11 आयतुल्लाह उज़्मा शेख हुसैन नूरी। नंबर 12 आयतुल्लाह उज़्मा सैयद गुरगानी सैयद अलवी गुरगानी। ये जो मैंने आपको 12 नाम दिए हैं, अगरचे और भी हैं, इन 12 में से किसी एक की तकलीद कर ले, जायज़ है। मेरी नज़र में इन 12 में से किसी एक की तकलीद कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह करीम आपको जिंदा हो सलामत रखे। एक फातिहा पढ़ेंगे हम आज इन मज़कूरीन के लिए जो नूर जमाल वाले हैं, आप सबके मरहुमीन मरहुमात जो आज वफात पा गए, जो अभी तक पड़े हुए हैं। आज मैं देख कर आया हूँ जिनकी मैयतें अभी तक पड़ी हुई हैं, तकरीबन कोई 8 लोग तो मेरे करीबी जानने वाले पड़े हैं वहाँ बाहर ट्रेलर में, फ्रीज़र के अंदर, और जो दीगर जगहों पे भी पड़े हैं बहुत सारे। अनहाय आलम में जितने भी मरहुमीन मरहुमात हुए, हाल हाल में जो मरहूम हुए, नाजरीन व नाजरात के जमी मरहुमीन मरहुमात के लिए रहमल्लाहु मन यक़रउल फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा बस्सवाब हातैन सूरतैन बिवसीलत मुहम्मद व आले मुहम्मद इला अरवाहिल मंजूरीन अल मज़कूरीन अल मरहुमीन। अल्लाहुम्मा अग़फिर ज़ुनूबहुम वरहम अला अहवालिहिम वहशुरहुम मअन नबिय्य व अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। या अल्लाह मोहम्मद व आले मोहम्मद कुरान और रमज़ान और अहले बैत के तुफ़ैल में हमारे गुनाह माफ़ फरमा, हमारे माँ बाप के गुनाह माफ़ फरमा, नाज़रीन और नाज़रात के गुनाह माफ़ फरमा, सामीन और सामियात के गुनाह माफ़ फरमा, नाज़रीन नाज़रात और मेरे हम सब के मरहुमीन मरहुमात की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह हमें तौफीक इताअत व बंदगी अता फरमा, रमज़ान की नेमतों बरकतों से नवाज दे। डेली बेसिस पे 20 रकतें पढ़ने की तौफीक अता फरमा, 2 रकत जिसके बाद 70,000 गुनाह माफ़ होते हैं पढ़ने की तौफीक दे। अल्लाहुम्मा अदखिल अला अहलिल क़ुबूर सुरूर, जिससे सारे गुनाह माफ़ होते हैं पढ़ने की तौफीक दे। या अली या अज़ीम पढ़ने की तौफीक दे। दुआए सहर, दुआए इफ्तिताह, अदइया रमज़ान,
आज की दुआ पढ़ने की तौफीक अता फरमा, रमज़ान में दुआउल जोशन पढ़ने की तौफीक अता फरमा, हम सबको तहज्जुद पढ़ने की तौफीक खैर नसीब फरमा, सुन्नतों के साथ फ़र्ज नमाजें पढ़ने की तौफीक अता फरमा, सिपारा पढ़ने की तौफीक अता फरमा, बल्कि सिपारे पढ़ने की तौफीक अता फरमा। यासीन, मुल्क, रहमान, दुखान, वाक़या, फातिहा, आयतुल कुर्सी, इखलास, चारों कुल समेत सब कुछ पढ़ने की तौफीक खैर नसीब फरमा। बाकी जो इसमें आज़म है पढ़ने की तौफीक दे, ताक़ीबात पढ़ने की तौफीक अता फरमा, हमारे रोज़ों को कबूल फरमा। या अल्लाह तुझे वास्ता है, अपनी मेज़बानी का हम तेरे मेहमान हैं, अगरचे गुनाहगार हैं, रूसिया हैं, हमें कोरोना वायरस से महफूज व मसून व मामून फरमा और कोरोना वायरस का सत्यानाश फरमा, तबाह बर्बाद फरमा। या अल्लाह हमारे कर्ज अदा फरमा, हमें रिज़्क़ वसी अता फरमा, जो लॉकडाउन के सबब लॉकअप हो चुके हैं हमारी कैदों को रिहा फरमा। अतबात मुक़द्दसा को जैसे खोल दिया गया है, हमें हज उम्रा और ज़ियारत की तौफीक नसीब फरमा। हम तो घरों में अब बैठ गए, या अल्लाह अपने घर में एतिकाफ की तौफीक नसीब फरमा। इमामुल असर के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमें आपके आवान व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुदा हाफिज़ो नासिर।